You are all welcome to Bihar Civil Court Mains Test 22. Let us have a look at the essays. Population explosion. To write the essay, you should first define what you mean by population explosion. एक population explosion क्या है? And then you will give background information. Background information. You will talk about India's population compared to China and other countries. Then you will write on the negative impacts of population explosion, and you can also have a look at positive aspect of population. And then you will conclude. Okay. Let us move to the next, women empowerment. What do you mean by women empowerment? You will define women empowerment. Define women empowerment. What women empowerment is, you will write on it. Then you will write the advantages of empowering women. महिलाओं को सशक्त करने का क्या लाभ है समाज के लिए. ओके. फिर इस बीच में चुनौतियां क्या हैं, challenges क्या है, and then you will conclude. Okay. The next one is future of democracy. First, you will define democratic system. Okay. You will also define positives. You will write on positives of democracy in India, and you will also look at the challenges for democracy in India, and then you will conclude. Let us have a look at letters. The very first thing, write a letter to the Superintendent of Police, Traffic, Patna, drawing his attention towards frequent traffic snarl. Traffic snarl means traffic jams. Traffic jam. First, what you write? Sender's address. Then you will write date. Then you write receivers designation and address. Then you will write subject, then salutation,
station. Then you will write the body. You will talk about the problems, why jams are created, okay, and you will suggest some measures as well. Body may describe the problem and suggest measures in the body. Then you will write complementary close, yours sincerely, and then you will write the name, that is called subscription. You will write subscription, okay. Now move on to the paragraph, reading comprehension paragraph. India is a large country in South Asia, surrounded by many countries which are called its neighbors. To the north, India shares borders with China, Nepal and Bhutan. To the east, it is close to Bangladesh and Myanmar. To the west, India's neighbor is Pakistan. Okay, you know, right now India is at war with Pakistan. To the south, India is surrounded by the Indian Ocean, but it is close to Sri Lanka and the Maldives. Maldiv in Hindi में कहते हैं, which are island countries. Sri Lanka and Maldives are island countries. द्वीपीय देश है. India and its neighbors have many things in common. भारत और इसके पड़ोसियों में बहुत समानता है. Yeah. What we eat, Pakistanis eat, वही खाते हैं वो भी. Okay, Nepalis eat, okay. हमारे कपड़े, हमारी संस्कृति वो मिलते जुलते हैं, भले वो कितना अंतर बताने का प्रयास करे आसिफ मुनीर, वो अलग की बात है ना. लाइक कल्चर, फूड, ट्रेडिशंस, हमारी संस्कृति, हमारा खाद्य पदार्थ और हमारी परंपराएं. फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, जैसे फेस्टिवल्स लाइक दिवाली and Eid are celebrated in many of these countries. दिवाली और ईद इन लगभग सभी पड़ोसी देशों में होते हैं. However, इसके बावजूद each country also has its own unique identity. लेकिन हर देश की अपनी भी कुछ अलग पहचान है. For instance, उदाहरण स्वरूप नेपाल is famous for the Himalayas. नेपाल अपने हिमालय के लिए प्रसिद्ध है. श्रीलंका is known for its beautiful beaches. और श्रीलंका अपने समुद्र तटीय रमणीय समुद्र तट बीचेस के लिए प्रसिद्ध है. एंड टी प्लांटेशन और चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है. पाकिस्तान एंड इंडिया शेयर हिस्ट्री. पाकिस्तान और भारत का इतिहास तो एक ही है, भले वो कहे जो कहे, बट हैव डिफरेंट गवर्नमेंट्स. सरकारें अलग अलग हैं. ओके, ज्योग्राफी तो लगभग एक ही है ना. एंड वेज ऑफ लाइफ टुडे, और आजकल जीवन का जो ढंग है वो थोड़ा सा अलग हो गया है. एनीवे, बांग्लादेश इज नोन फॉर इट्स रिवर. बांग्लादेश को अपने नदियों एंड ग्रीन लैंडस्केप्स और हरियाली के लिए जानी जाती है. वाइल भूटान इज फेमस फॉर इट्स फोकस ऑन हैप्पीनेस. अब भूटान अपना खुशी का जो इंडेक्स है उसके लिए प्रसिद्ध है. हाँ, खुश रहता है. हाँ, हैप्पीनेस में आ गया. डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, इतने मतभेदों के बावजूद भी इंडिया एंड इट्स नेबर्स वर्क टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं. ऑन मेनी इशूज लाइक ट्रेड, व्यापार के बारे में, एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं. दे ऑल्सो फेस चैलेंजेस, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं, सच एज नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं. ओके,
एंड पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, और राजनीतिक असहमति, बट दे ट्राई टू सॉल्व देम थ्रू डायलॉग, लेकिन इसे अपनी बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ा मिसाइल चल गया है, अलग की बात है। एंड कॉपरेशन, वो कब तक, हाँ कब तक इसको, कब तक का मामला है ना। एंड कॉपरेशन और सहयोग, है ना। ओके, ये ईडियम है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो होता है ना, भोंपू जिसे कहते हैं, भोंपू बजता है ना विवाह समारोह में, है ना, बारात में बजवाते हैं ना, और कुछ अवसरों पर। ब्लो मीन्स बजाना, वंस ओन ट्रम्पेट अपने ही भोंपू बजाना, इसका अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना। प्रेज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ। ओके, कहाँ बचाया एटॉमिक, एटॉमिक तो बचा नहीं पाया भारतीय मिसाइल से। एनीवे, नेक्स्ट। ओके, अपनी ही प्रशंसा करना। ओके, अपने मुंह मियाँ मिठू जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लिक्टिंग, इसका अर्थ होता है किसी को दर्द देना, छुरा मार देंगे, ये क्या हुआ, इन्फ्लिक्टिंग। गिव पेन, गिव पेन, दर्द देना। इन्फ्लिक्ट मीन्स दर्द देना। इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ हर्टिंग, हर्टिंग है ना, हाँ दर्द देना। एंड स्टुपेंडस का अर्थ है वो कार्य जो बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क है, दैट इज कॉल्ड स्टुपेंडस। इसका उल्टा हो जाएगा इजी, सरल, सरल। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसको पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, प्लीज डू। इसको पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, लिखते हैं ल्यूटिनेंट, पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। हाँ, LIEUTENAN, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। क्या क्या छूट गया है, ई छूटा हुआ है, ई पे ध्यान दीजिए। लेफ्टिनेंट, इस तरह का कुछ वर्ड है जिस पे ध्यान देने का है ना, जिसका उच्चारण अजीब है। हाँ, कर्नल है, COLONEL, कर्नल। डायरिया तो इजी है, DIARRHOEA, डायरिया, पायरिया, कनोरिया, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज, वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है। मिस, मिस का अर्थ होता है घृणा करना, मिस मीन्स घृणा करना, वो वाला MISS नहीं, वो तो मिस है, वो तो गर्ल्स के लिए। ये मिस है घृणा, ये मिशन से बना है, ये MISEN, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये मिशन से बना है। और एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस ये भी ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैन, इसका अर्थ होता है हेट। दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है मिस एंड थ्रो और पिस्ट, ईस्ट मीन्स करने वाला। हाँ, ये व्यक्ति के लिए कॉमन नाउन बन जाता है। ये स्पष्ट है? आई थिंक दिस मच will suffice. See you in the next video. Until then, good night.